Hi guys, so we'll be starting with lesson 12, an overview on corporate reorganization. Now, this is a relatively vast chapter, but we can break it down into various parts. Now, there are four important parts of this chapter. First is the compromise and arrangement and amalgamation. It is covered from section 230 to 240. Here, it primarily covers your mergers and takeovers under company law. We will see. Then comes a topic called as operation and mismanagement. That and the case law is super duper important. That is your Foss versus Hanbottle. It covers from after section 240 when it ends here, then it continues. So it will be from section 241 onwards till 245. Then comes the next topic, that is winding up. Winding up can be divided in two parts. One is voluntary winding up. It is covered under section 59 of the Insolvency Bankruptcy Code IBC 2016, and compulsory winding up is covered under section 271 of the Companies Act 2013. Okay, so winding up topic is there. Then there's a concept of registered valuers, that when you want to value certain properties, you have to appoint a registered valuer. That is given under section 247. Now let's see, we'll take one topic at a time. Now this topic, though it is very vast, but it has a more weightage from final point of view. But here we will take a overview. We'll understand what all it is about. Section 230 to 240. Here. So these are your sections from 230 to 240. Let's see. Now I'll give you a very nice technique to memorize these sections also. Okay, and I'll tell you all the important ones. First, section 230 to 232 talks about the normal merger process. The normal merger process. अगर merger करना है तुमको, तो तुमको किधर जाना पड़ेगा? किसका approval चाहिए? Whose approval do you need to do a merger? सीधा ROC नहीं, सीधा NCLT का अप्रूवल. नॉर्मल मर्जर प्रोसेस मतलब सीधा कोर्ट के पास में भेज रहे. छोटी बात नहीं है, सीधा कोर्ट के पास. Now what happened, this was always the scenario. Whenever any company wanted to do a merger, they had to go to the court route, NCLT. So this was a very long, cumbersome and expensive process. So then they said, अच्छा ठीक है यार, ये छोटों के लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा. So then they have made section 233. 233 talks about fast track mergers or merger of small companies. So section 233 talks about mergers of small companies or with a holding company with its wholly owned subsidiary. इसका primary name क्या है? Fast track mergers. तो इसमें क्या होगा? You can do a merger without NCLT approval. So you can do a merger without NCLT approval. Don't you think it is going to be a faster process? So it is going to be less costly, less time consuming. So that is the fast track mergers. फिर बाद में थोड़ा डोमेस्टिक की क्यों बात करते, थोड़ा लंबा भी आगे की भी बात करते. Then we have your next section, that is your section 234. Section 234 talks about mergers with foreign companies or also called as cross border mergers. अगर हम लोग एक फॉरेन कंपनी के साथ में मर्ज करेंगे, so it will be called as a cross border merger where a foreign company is involved. So it is given under section 234. ठीक है. अब मर्जर बहुत बात कर लिया. दूसरा बात करेंगे टेक ओवर के बारे में. नाउ कहीं ना कहीं ये सेक्शन 235 and section 236
रेड विथ सेक्शन 238, ठीक है, टॉक अबाउट टेक ओवर ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। एक प्रोविजन है कि अगर हम लोग को 90% का कंसेंट मिल गया टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स का, ओके, और खाली 10% या 5% लोग आवाज कर रहे हैं, 90% और मोर कंसेंट आ गया है, सो द अक्वायरर will give a notice to the dissenting shareholders and take over dissenting shareholders, compulsory acquisition of dissenting shareholders। सर मैं तो ये अपने को दिया है 235, 236 एंड 238 के अंदर। अभी अगर एक मर्जर, अरेंज मैरिज के बारे में सुना है तुमने? घर पे बात कर रहे होंगे तुम लोग के लिए, बट व्हाट यू वांट टू डू, ओके, सो लेट्स सी, एक अरेंज मैरिज जैसा कंपनीज की भी अरेंज मैरिज हो सकती है। सेक्शन 237 talks about arrangement. You think arranged marriages are good? Depends. Sometimes. तुम नोटिस करना, most of the youngsters hate arranged marriage. They will oppose arranged marriage. They will cry that it should not happen arranged marriage. बट एक बार उनका शादी तय हो जाता है तो उनके प्री वेडिंग शूट देखोगे तो अलग ही सिनेरियो लगेगा। ओके, सो ये क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर तुम्हारे मम्मी डैडी को लगा कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ओके मर्जर कर देना चाहिए, तो दिस इज लाइक अ नॉट योर विशेस, सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट कैन आस्क फॉर मर्जर ऑफ कंपनीज। ये दोनों अच्छे लग रहे हैं, सेम प्रोफेशन के हैं, यू नो, दोनों उतने ही स्टूपिड है, एक काम करते लोग ही शादी कर देते हैं। So this will come what in compulsory 237 by central government ordering two companies to merge। कभी तुमने सुना है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होके बोल रहा है आप लोग मर्ज करो? अभी रिसेंटली बैंक्स का पता है मर्जर करने का सोच रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में, कि काफी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज कर देंगे, तो वो 237 में दिया। अभी जो तुमने एक बार मर्जर हो गया, ठीक है, मैरिज के पेपर्स बचा के रखने के लिए उसको रॉकेट बना के उड़ा देंगे, सो बचा के रखना पड़ेगा। ओके, नाउ द थिंग इज प्रेजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ अमालगमेटेड डॉक्यूमेंट्स कितने टाइम तक बचा के रखने का? 8 years। 8 years, तो 8 years के बाद में फिर इशू हुआ तो परमानेंटली। बेसिकली क्या होता है, यू शुड नॉट डिस्पोज ऑफ द पेपर्स एक्सेप्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट। जनरली तो ये पेपर्स परमानेंटली प्रिजर्व्ड होते हैं, क्लियर है ना? अगर तुमको डिस्पोज ऑफ करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज 240, अगर कोई ऑफिसर्स ओवर स्मार्ट बन रहे ड्यूरिंग द मर्जर प्रोसेस, ठीक है, तो उनका ऑफेंस के लिए दिया हुआ है, राइट? So let's see, after seeing the sections for merger, it is given under chapter 15 of Companies Act, section 230 to 240। इसका हेडिंग का नाम क्या है? मर्जर अमालगमेशन नहीं दिया है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स एंड अमालगमेशन, CAA करके। तो इसके फॉर्म्स भी है वो CAA करके ही है, दे आर नथिंग बट मर्जर्स एंड टेकओवर्स। तो कंपनी लॉ में यू शुड नो फ्रॉम सेक्शन 230 to 240 talks about mergers and takeovers. So just a small recap if without seeing the section. Now this you will memorize, अभी तुमको permanently पता हो जाएगा, ठीक है? Section 230 to 240 talk about merger process। इसके अंदर सबसे नॉर्मल merger process जो होता है, the नॉर्मल मर्जर प्रोसेस कौन से सेक्शन तक है? 230 to 230। वेरी गुड, सो टू फ्रॉम सेक्शन 230 टू सेक्शन 232, ठीक है, नॉर्मल मर्जर प्रोसेस। फिर दूसरा आता है कि यार नॉर्मल में मजा नहीं है, थोड़ा फटाफट करते हैं, तो दूसरा उसका नाम क्या है? फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक मर्जर्स। फास्ट ट्रैक मर्जर्स इज गिवन इन सेक्शन 232
3. इसमें इट इज डन फॉर ओनली 2 काइंड्स ऑफ कंपनीज. ये जो फास्ट ट्रैक मर्जर है, बड़ी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज कैन नॉट ऑफर फास्ट ट्रैक मर्जर्स. This can operate only in 2 cases. First is if it are 2 small companies. Small companies are involved. तुम small companies के definition में जाओगे तो पता चलेगा what are small companies. And second, if it is a merger between a holding and a subsidiary company, तो फटाफट कर सकते हैं. 2 small companies तो है, so with not much they can merge फटाफट without NCLT approval. तो यहाँ पे you can merge without NCLT approval. तो फिर बाद में क्वेश्चन आता है, तो अगर NCLT का अप्रूवल नहीं चाहिए तो किसका चाहिए फिर, राइट? अगर NCLT का नहीं चाहिए तो किसका चाहिए फिर? तो वेरी गुड. तो सबसे पहले आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल, बोर्ड रेजोल्यूशन. फिर सेकंड चाहिए हम लोग को शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन. फिर थर्ड क्रेडिटर्स का भी कंसेंट लेना पड़ेगा. यू रिक्वायर क्रेडिटर्स कंसेंट. एंड क्रेडिटर्स मतलब जिसने लोन दिया वो भी अग्री कर देने चाहिए 90% और मोर. तो दोज हु आर होल्डिंग 90, हु हैव गिवन अ लोन ऑफ 90% और मोर, दे इफ दे गिव कंसेंट. एंड लास्ट में अथॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से NCLT के बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल डायरेक्टर, ROC का दे दिया है. अब हम लोग बोल रहे कि यार छोटी कंपनीज है और होल्डिंग सब्सिडरी है तो वो लोग मर्ज हो रहे, चल जाएगा. क्रेडिटर्स ने भी कंसेंट कर दिया तो ऑब्जेक्शन का कोई बात ही नहीं आती है. खाली हम लोग बोलते हैं कि भाई एक काम करो, आप हमको एक डिक्लेरेशन दो जिसका नाम है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी. डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी क्या होता है कि भाई आप लोग सॉल्वेंट हो और मर्जर करते करते डूब नहीं जाओगे. तो एक ऐसा डिक्लेरेशन चाहिए एंड देन यू आर सॉर्टेड टू डू अ फास्ट ट्रैक मर्जर. फटाफट हो जाता है. एक बार अगर कर ही रहे हैं तो हम लोग वो फास्ट ट्रैक मर्जर का, ये एग्जाम में आ सकता है. नॉर्मल मर्जर प्रोसेस नहीं आ सकता बिकॉज वो बहुत ही लंबा है. फास्ट ट्रैक मर्जर दे कैन आस्क यू इन योर एग्जाम डायरेक्टली फॉर 5 मार्क्स. देख लेते और अभी खत्म कर लेते फास्ट ट्रैक मर्जर का क्या है. सी, फर्स्ट थिंग इज फास्ट ट्रैक मर्जर्स. See, section 230 to 232 is a very time cumbersome process. Okay, and because there are many regulatory bodies involved, so a new provision in section 233 has been introduced called as a fast track merger process, where 2 or more small companies or a holding company and a wholly owned subsidiary को मर्ज करना है तो कर सकते हैं. तो बिटवीन 2 स्मॉल कंपनीज मर्ज हो रहे हैं या होल्डिंग सब्सिडरीज मर्ज हो रही है तो वो लोग फास्ट ट्रैक ऑप्शन के लिए जा सकते हैं. सो इट्स अ वेलकम प्रोविजन सिंस द कॉस्ट एंड द टाइम ऑफ मर्जर इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड. अब इसके अंदर क्या लिखा है, एप्लीकेबिलिटी. हु कैन ऑफर फास्ट ट्रैक मर्जर? 2 और मोर स्मॉल कंपनीज का मर्जर हो रहा है या होल्डिंग कंपनी एंड होली ओन सब्सिडरी मर्ज होना चाहती है तो दे कैन ऑफर फास्ट ट्रैक मर्जर. So in fast track mergers, then you don't require NCLT approval, but you require consent from the ROC, official liquidators. You will have to listen to their objections. You have to file a very important document before the ROC, that is a declaration of solvency, and the scheme should be approved by the shareholders and the creditors. Let's see किस किस का अप्रूवल चाहिए अगर फास्ट ट्रैक मर्जर करना है. तो शेयर होल्डर्स, ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर अप्रूवल चाहिए, ROC एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर. देन फॉर्म्स देखते हैं कौन से हैं. स्पेसिफिक फॉर्म्स भी है. दीज आर जनरली CAA फॉर्म्स. सो सबसे पहली चीज ऑब्जेक्शन जो देना पड़ता है. ओके, नोटिस फॉर द ऑब्जेक्शंस इज गिवन इन CAA 9.
declaration of solvency is given in CAA 10. Then CAA 11 में क्या होता है, नोटिस ऑफ अप्रूवल ऑफ द स्कीम. एक बार जब अप्रूव हो गया स्कीम तब तुमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर कि भाई हम लोग ने अप्रूवल ले लिया है. नेक्स्ट, एक बार अप्रूवल ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंफर्म करके ऑर्डर देगी. और तो then if they give it's a happy ending, then central government will be satisfied and will give a order कि भाई हम लोग को अच्छा लगा, let's begin with the merger, we approve the merger. But what if the central government or the regional director is unhappy with the merger? They say नहीं हम लोग को नहीं लग रहा है सही. So they will file a application, the regional director, that is the central government. तो ऐसा ही होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला उसके अंदर पावर्स रीजनल डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं, रीजनल डायरेक्टर्स के अंदर आरओसी. ओके, एंड आरओसी से कभी कभार लिक्विडेटर्स आते हैं. सो दीज आर ऑल वन एंड द सेम डिपार्टमेंट. सो अगर यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया तो देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल फाइल अ एप्लीकेशन इन एनसीएलटी दैट वी आर नॉट गिविंग अप्रूवल, यू प्लीज टेल देम टू फॉलो द डिटेल रूट. और फिर अगर एनसीएलटी का ऑर्डर फाइनल होगा, if NCLT says sanctions the scheme, तो well and good, but if NCLT doesn't sanction the scheme, then you will have to go through the detailed procedure given under section 230 to 232. यहाँ पे भी देखेंगे एक और बार फास्ट ट्रैक मर्जर्स. नोटिस देना पड़ेगा inviting objections in CAA 9. It is sent to the ROC and the official liquidator. फिर उसके साथ में तुमको एक डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भी देना पड़ेगा इन CAA 10 दैट दे आर सॉल्वेंट. फिर तुमको मीटिंग बुलानी पड़ेगी, कन्वीन अ मीटिंग. मीटिंग में तुमको कंसेंट लेना पड़ेगा. फिर तुम डॉक्यूमेंट्स फाइल करोगे. एक बार स्कीम अप्रूव हो गया तो CAA 11 के अंदर तुम इन्फॉर्म करोगे. ओके, और ये सब तुम एक GNL करके एक फॉर्म आता है, वो सब के अंदर अटैचमेंट्स करके भेजने का, द फीस एंड एवरीथिंग, ऑल द रिपोर्ट. एक जनरल फॉर्म है जिसमें तुम दैट यू हैव टू फाइल दैट यस वी हैव अप्रूव्ड. देन यू विल गेट अ ऑर्डर. दिस इज अ हैप्पी एंडिंग where the scheme has been approved and central government is of the opinion that the scheme is in public interest, and it will give a confirmation order in CAA 12. But if central government is unhappy with the scheme, they will say no, we don't like the scheme, then and they have objections, then they will have to file the objections before the tribunal. This will be in CAA 13. Clear itna? So if you remember the form numbers, it is sufficient. CAA 9 to 13. Objections यहाँ पे लेने का, सॉल्वेंसी बोलने का कि हम लोग सॉल्वेंट है. एक बार शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स ने अप्रूव कर दिया तो तुम इन्फॉर्म करोगे. फिर यूल वेट फॉर द कंफर्मेशन. दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो एनसीएलटी में वो कंप्लेन कर देंगे. क्लियर इतना? दिस इज योर फास्ट ट्रैक मर्जर प्रोसेस. नाउ this is done, declaration of solvency and all this I told you. Now the next one, एक बार फास्ट ट्रैक मर्जर हो गया तो सब डोमेस्टिक बातें कर रहे. फिर नेक्स्ट आता है, कौन सा है नेक्स्ट सेक्शन? 234, विच इज दैट? कौन सा है? CBM बोलते हैं उसको, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स. क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स क्या होता है? इट इज अ मर्जर इन्वॉल्विंग अ फॉरेन कंपनी और अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अनदर कंट्री. ये सब के अंदर भी कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है. सब में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट एक और रेगुलेटर का कंसेंट चाहिए रहेगा. कौन आ जाएगा वो? अप्रूवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. कौन डील करता है? आरबीआई. तो जब भी ये होगा तो आरबीआई का कंसेंट लेना पड़ेगा तुमको व्हेन अ फॉरेन कंपनी इज इन्वॉल्व्ड. ओके, एंड दिस हैज टू बी रेड विथ रूल 25. ठीक है, तो सेक्शन 234 हैज टू बी रेड विथ रूल 25 के आरबीआई का कंसेंट है. ना वो लोग बोल रहे एक बार आरबीआई ने कंसेंट दे दिया, सो यू विल डू अ मर्जर
with a foreign company in the same manner that you would do a domestic merger. मतलब they are saying कि जैसे नॉर्मल मर्जर्स होते हैं वैसा ही कराओ. एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया, देन जस्ट डू इट जस्ट लाइक अ डोमेस्टिक मर्जर. डोंट वरी, बोथ वेज. अगर मर्जर में एक कंपनी कभी पर डिसॉल्व हो जाती है, सो इट इज पॉसिबल दैट our company gets transferred, acquired by someone else, or we acquire. Tata acquired Jaguar and Land Rover, but sometimes it could happen that Flipkart gets taken over by a foreign company, Walmart. ठीक है, तो both ways it is there. Let's understand what I am saying. एक होता है inbound mergers. अब जब हम लोग देख रहे हैं तो जो mergers है, foreign mergers, क्रॉस बॉर्डर मर्जर, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज अ इनबाउंड मर्जर एंड द अदर वन इज अ आउटबाउंड मर्जर. नाउ यू टेल मी, इफ द रिजल्टेंट कंपनी, मतलब जो नई कंपनी है जो बाय विच हैज बॉट द अदर कंपनी, if the resultant company is an Indian company, so it will be an inbound merger or outbound merger? Inbound. Inbound. So when the resulting company is a Indian company, इसका मतलब क्या है? टाटाज ने जैगवार एंड लैंड रोवर को टेक ओवर किया और टाटाज अभी भी एग्जिस्टेंस में है, तो बायर कंपनी कौन सी है? इंडियन कंपनी. सो इट इज अ इनबाउंड मर्जर, मींस द इंडियन कंपनी विल सर्वाइव. If there is a merger between two entities and the Indian company survives, so it is an inbound merger. But what if the resultant company is turns out that a foreign company के साथ में हम लोग ने merge किया और foreign company existence में है और Indian company अपना existence भूल जाती है, give up कर देती है, then it will be called as a outbound merger. समझ में आया ये? तो ये होता है इनबाउंड मर्जर और आउटबाउंड मर्जर. यू टेल मी, इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से विच इज बेटर? Indian company. सो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से इनबाउंड मर्जर्स अच्छे रहते हैं क्योंकि वी आर द टेक ओवर वी आर द अक्वायरर्स. ओके, सो जनरली 1956 एक्ट में जो था ना, वो सिर्फ इनबाउंड मर्जर्स को ही अलाउ करते थे. आउटबाउंड मर्जर्स वर नॉट अलाउड. Means foreign companies could not take us over and then kill the Indian company and we lose our existence. That was not possible. But in 2013 Act, both mergers are allowed. Inbound mergers are also allowed and outbound mergers are also allowed. यहाँ तक समझ में आया? अब खाली रूल 25 में क्या लिखा है कि भाई जब आउटबाउंड मर्जर होगा या कोई भी मर्जर हो रहा है जिसमें एक फॉरेन कंपनी इन्वॉल्व है, दैट फॉरेन कंपनी विल बी ऑफ सर्टेन ज्यूरिसडिक्शन. कोई तो कंट्री की होगी वो. कैन इट बी ऑफ पाकिस्तान? No. तो वो लोग बोल रहे हैं कि परमिसिबल ज्यूरिसडिक्शन से वो आनी चाहिए. जस्ट लाइक इमेजिन, टेल मी वन थिंग, if you fall in love with anybody, you genuinely fall in love, you think your parents will stop you? Okay, we'll have to ask that question to your parents. But generally, what if you tell कि ये अफगानिस्तान से है ये इंसान, or if I tell you that he lives in Karachi, you think even before seeing the person the family will panic? Why? Because these are certain dangerous jurisdictions. तो यहाँ पे आरबीआई ने भी certain jurisdictions बताए जो जनरली मनी लॉन्ड्रिंग लॉज फॉलो नहीं कर रहे हैं. ओके, या वो they are deficient in certain laws in taking action against criminals. Those countries we will say that you are not allowed. In all other you can go. So where you are deficient in money laundering or this, you are not allowed to go. So let's see what is given. Now we are seeing the foreign merger. Section 234 talks about cross-border mergers.
क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स में क्या लिखा है, यू रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रूल 25 में क्या लिखा है कि भाई जब मर्जर होगा और हमारे वाला पार्टी अब्रॉड जा रहा है तो वो अच्छी कंट्री का ही होना चाहिए। A jurisdiction with which we have signed certain memorandum of understanding, or with our central bank has signed, is a member of the Bank of International Settlement, or the jurisdiction is not identified by the Financial Action Task Force as they are deficient in money laundering laws, or they have not made sufficient progress to combat money laundering, तो ऐसी कंट्रीज में नहीं जाने का। क्लियर इतना? एंड देन दैट गेट्स ओवर। सो दिस ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू। these are the questions that they can ask, that is section 233 and 234 could be their questions. Clear? Now next is mergers की बहुत बात हो गई, नेक्स्ट इसकी बात करेंगे टेक ओवर की। नाउ टेक ओवर ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, डिसेंटिंग शेयर होल्डर। अब इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम क्या रख सकते हैं हम लोग, कंपल्सरी एक्विजिशन, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड क्या है ये प्रोविजन। फर्स्ट इज कौन से सेक्शन में दिया है, नेक्स्ट सेक्शन में, सीक्वेंस में भी लर्न हो जाएगा, दैट इज योर सेक्शन 235 and section 236, read with section 238। ठीक है, टेक ओवर ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। अभी समझते क्या सीन है इसका प्रोविजन। नाउ देर इज टू एंटिटीज, एक है अक्वायरर, लेट्स से so let's see what is the provision। एक होगा अक्वायरिंग कंपनी, अक्वायरर, और दूसरा होगा टारगेट कंपनी, टारगेट कंपनी। अब तुम देखो, जनरली टेक ओवर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये वाली बिग फिश को क्या बोलेंगे हम लोग, अक्वायरर, और वो जिसको अक्वायर कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, टारगेट कंपनी। नाउ यू टेल मी, विल टारगेट कंपनी वांट टू बी अक्वायर्ड? Not mostly. नॉट मोस्टली, बिकॉज कभी कभार क्या होता है, लोग रुके रहते भाई हमको आके कोई अक्वायर करके जाए, वैसा भी हो सकता है। नाउ कभी कभार अक्वायरर होते हैं, they want to take control, they want to acquire the shares of the target company for whatever business purpose, उनको लग रहा है कि strategic gain होगा। sometimes if you can't beat them, join them, they want to acquire all the target company। now जब acquire कर रहे हैं तो सोचो, acquirer बोल रहा है target company को, don't worry, it's a friendly takeover, फ्रेंडली टेक ओवर है, खुशी खुशी कर रहा हूं मैं, जो पैसा मांगोगे मूंग मांगी कीमत देंगे। तो टारगेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो क्या करेंगे, एक्सट्रीमली हैप्पी कि मुंह मांगी कीमत मिलेगी, तो वो बोलेंगे कि हर शेयर का डबल पैसा देंगे, डबल द प्राइस, आपके सारे शेयर्स मेरे को दे दो, हमको टेक ओवर करने दो। नाउ डोंट यू थिंक पीपल विल बी हैप्पी? अब पार्टी कर रहे हैं, बट थोड़े शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, वो लोग बोल रहे हमको ट्रिपल पैसा चाहिए, या हम लोग अग्री नहीं करेंगे, या हम लोग को बेचना ही नहीं है, हो सकता है कि नहीं।
सो व्हाट इज हैपनिंग इज, इफ टारगेट कंपनी से 90% शेयर होल्डर्स, 90% or more have consented to the takeover, इसका मतलब जो बाकी के माइनॉरिटी है वो खाली टाइम पास कर रहे हैं, वो खाली वेस्ट कर रहे हैं टाइम. इट मस्ट बी अ बोनाफाइड ऑफर, तब जाके 90% और मोर का कंसेंट आ चुका है. तब अक्वायरर क्या करेगा, जब उसको 90% और मोर का कंसेंट मिल जाता है, देन ही विल गिव अ लेटर टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, एंड द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को ही विल गिव अ लेटर, और उसमें क्या बोलेगा, आई एम गोइंग टू कंपल्सरी acquire your shares, compulsory acquisition of shares. Now question is, you think it is fair कि ऐसा compulsory जबरदस्ती किसके shares खरीद लेने का? Now इसमें क्या लिखा था कि भाई अगर एक कंपनी का 90% और मोर कंसेंट आ गया है अक्वायरर को, बट अक्वायर को पूरी कंपनी चाहिए, सो व्हाट दे आर सेइंग इज द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो माइनॉरिटी में है, दे हैव रिड्यूस्ड टू अ मिजरेबल माइनॉरिटी. मिजरेबल माइनॉरिटी मतलब क्या, इतना लो लेवल का उनका माइनॉरिटी है, बच गया है कि वो लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे और नई कंपनी के अंदर झगड़े ही होंगे. सो द मोस्ट मीनिंगफुल एग्जिट फॉर देम is their shares being taken over gracefully and they get the price that others have also got. So instead, to prevent disputes, and you know that their minority shareholders are so less that they can't even file in NCLT, because कम से कम 10% लोग का कंसेंट चाहिए रहता है to file any case in NCLT. So meaningful exit, यहाँ तक समझ में आया? तो tell me one thing, ये compulsory acquisition कब कर सकते हैं of my dissenting shareholders? First point, when 90% or more consent is given, received from shareholders of target company, then acquirer को option मिलता है, acquirer can compulsorily acquire shares of the dissenting shareholders. यहाँ तक समझ में आया? तो छोटा सा है 235. नाउ नॉर्मल मर्जर प्रोसेस भी है, इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं है, सब सेम पॉइंट्स है, खाली देखो बोर्ड का तो कंसेंट चाहिए ही, बोर्ड मीटिंग, तुमको शेयर होल्डर्स का भी कंसेंट चाहिए. शेयर होल्डर्स कौन सा रेजोल्यूशन पास करना चाहिए फॉर नॉर्मल मर्जर प्रोसेस? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. हाँ, स्पेशल रेजोल्यूशन. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच मेनी पीपल डोंट नो, कि जब नॉर्मल मर्जर प्रोसेस होता है ना, इसमें ऑर्डिनरी भी नहीं होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन भी नहीं होता है. एक नाम है जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. इट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. इसमें कितने लोगों का कंसेंट चाहिए? 3/4 इन मेजॉरिटी in value, 3/4 in value and majority in number, and majority in number. इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ, बट इस रेजोल्यूशन को सिर्फ मर्जर प्रोसेस के अंदर ही ये रेजोल्यूशन होता है. नॉर्मली लोगों को सिर्फ ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशंस के बारे में पता है, बट मर्जर्स एंड अमालगमेशन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है जिसमें 3/4 इन वैल्यू एंड मेजॉरिटी इन कंसेंट का चाहिए, कंसेंट चाहिए. और एक बार इसका कंसेंट मिल गया, फिर तुमको एनसीएलटी का भी कंसेंट चाहिए, और तुम्हारा मर्जर प्रोसेस, एक बार एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया फिर आरओसी को इन्फॉर्म कर देने का. क्लियर इतना? दिस इज योर नॉर्मल मर्जर प्रोसेस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस 3/4 इन वैल्यू एंड मेजॉरिटी इन नंबर. अगर सोचो 4 शेयर होल्डर्स है, ओके, ए बी सी एंड डी, इसके पास में 80% शेयर्स हैं,
70% शेयर्स है, इसके पास में 10% शेयर्स है, इसके पास में भी 10, ऑल थ्री हैव 10% शेयर्स। तुम सोचो 4 शेयर होल्डर्स हैं, ए और बी ने कंसेंट कर दिया, क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया? स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया? No. स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए कितना कंसेंट चाहिए? 3/4. 3/4, तो 3/4 मीन्स हाउ मच परसेंटेज? 75. तो 75. 75 आ जाता है ना, 70 इसके पास में, 10 इसके पास में है, तो So, but that is according to numbers, na? नहीं, इट इज वैल्यू। Okay. नहीं तो तुम देखो ना, मुकेश अंबानी और तुम खड़े हो साथ में, तुम्हारे पास में एक शेयर है, मुकेश अंबानी के पास में इतने सारे लाखों शेयर हैं, तो नंबर ऑफ पीपल हेड काउंट नहीं कर रहे हैं। ये देखोगे तो हेड काउंट हो रहा है, ये ए वाला मुकेश अंबानी है, तो वैल्यू का देखेंगे हम लोग, समझ में आया? और यहाँ Yeah. पे नंबर ऑफ पीपल, तो 4 लोग हैं, तो स्पेशल रेजोल्यूशन नो डाउट पास हो जाता है, बिकॉज 75% ऑफ वैल्यू का कंसेंट आ चुका है। बट क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है? अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या है? 3/4 इन वैल्यू, तो 3/4 इन वैल्यू तो आ गया, बट क्या मेजोरिटी नंबर का आया? मेजोरिटी नंबर मतलब कितना? 3 लोग का कंसेंट चाहिए। सो दिस इज मोर स्ट्रिक्ट देन स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये करके तुमको एक और बंदे का कंसेंट चाहिए रहेगा। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी इन नंबर 4 में मेजोरिटी कब होगी? जब 3 जन कंसेंट करेंगे। तो तुमको हेड काउंट भी काउंट होता है और वैल्यू भी काउंट होता है, समझ में आया? सो टेल मी, इफ दीज 3 बी सी डी अप्रूव, क्या हो जाएगा रेजोल्यूशन? No. नो, मेजोरिटी नंबर हो गया, बट 3/4 इन वैल्यू नहीं हुआ। तो फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 3/4 इन वैल्यू भी हिट होना चाहिए, एंड मेजोरिटी इन नंबर का भी कंसेंट चाहिए, तब जाके वो होता है। क्लियर इतना? सो दिस इज द प्रोविजंस। You want, you can take a screenshot of this. Now moving forward, एक दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. You can mark it as super important. They can ask you for 5 marks. Now let's understand what is this operation and mismanagement. It was laid down, ये जो rule था, it is laid down in the case of Foss versus Harbottle. Let's understand. सबसे पहले एक केस हुआ था जिसका नाम है फॉस वर्सेस हार्बॉटल. इसका स्पेलिंग सब जगह अलग अलग है. हार्बॉटल का कोई हैंड बॉटल बोलता है, कोई वाटर बॉटल बोलता है. ओके, सो द थिंग इज, this was the case law. Now in this case law what happened, two minority shareholders filed case in court against the directors, that the directors have mismanaged the company, directors of the company. Now the question came up before the court that should they continue with the case. So ये facts था, सिंपल से फैक्ट से दो लोग को अच्छा नहीं लगा हाउ द डायरेक्टर्स आर फंक्शनिंग, एंड दे सेड दैट द डायरेक्टर्स आर मिसमैनेजिंग द फंड्स. नाउ क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड was, should the court take up the matter? Should court take up the matter? Okay, now what do you think? इतना सही छोटा सा मैटर है. What do you think? Should the court take up the matter? What do you all feel? Just yes or no में आंसर होगा. Should the court take up the matter? No.
बट डिपेंड्स इफ टू मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स का टोटल कितना शेयर होल्डिंग हो रहा है। सिर्फ 2 ही थे और बहुत बड़ी पब्लिक कंपनी थी. तो नहीं लेना चाहिए। Correct. So what happened is, this was the question involved. What happened is, the court rejected the case. The court decision that court rejected the application, or I could say rejected के बदले में dismissed the case. So they dismissed the case and they laid down the rule of non-interference or majority rule. अब समझते क्या है ये रूल ऑफ मेजॉरिटी रूल. इसमें कोर्ट ने क्या बोला कि भाई आप लोग इधर आइए. So the 2 shareholders came forward. They told the shareholders क्या प्रॉब्लम है. तो they said the directors ने पैसे कंपनी का मिसमैनेज किया है. They are working in detrimental interest of the company. तो the court said कि क्या कंपनी में क्या तुम लोग अकेले हो. Company is a artificial legal person. It has the capacity to sue and be sued. The company acts on wishes of the majority. So why aren't the majority people filing the case? समझ में आ रहा है? That you two don't have locus standi. Locus standi means what? The right to move the court. कि तुम लोग के पास में standing ही नहीं है. Tell the majority. What about the other shareholders? Call them up. So courts will not. What is the rule of majority rule? That courts will not interfere into the working of the company as long as it is run by the majority. As long as it is run by majority. ठीक है. अब वो बोल रहे हैं कि भाई मेजॉरिटी रन कर रहा है तो हम लोग इंटरफियर नहीं करेंगे. दिस इज द रूल ऑफ नॉन इंटरफियरेंस और द मेजॉरिटी रूल. सेकंड, इसका पर्पस क्या हो सकता है? What could be the object of this rule, objective of this rule, or the rationale, the principle laid down behind the rule? First, they have said that they अगर allow कर दिया तो rationale क्या है? That there will be multiplicity of cases. अगर अलाउ कर दिया ऐसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को केस करने को तो हर एक कंपनी में लाखों केसेस होंगे एंड द कोर्ट्स विल बी overburdened. Second, the company can file a case by itself. Company can sue in own name. Second, the smooth functioning of the company will be able to function in a smooth manner. Otherwise सब यहाँ पे litigation में ही लड़ते रहेंगे. Clear इतना? They've always said that there will be minority shareholders who don't agree. The rationale has been laid. Now, समझ में आया? Does it make sense? Majority rule. That तुम लोग दो अकेले क्यों आ रहे हो? कंपनी तो केस फाइल कर सकती है. जाओ दूसरों को भी बुलाओ. What if majority approves the actions? Majority later approves the actions. Then the entire filing of case will be futile. अगर कोर्ट ने कॉग्नाइजेंस ले भी लिया, उठा भी लिया, बट मेजॉरिटी बोल रहे नहीं नहीं हम लोग को नहीं लगता है मिसमैनेजमेंट है, so the entire case would be futile. So this was the majority rule. Now, very interesting. It makes sense or no? Yes. Yes. But एक
एक्सेप्शंस रखा है रूल का कि व्हेन द कोर्ट्स कैन इंटरफियर इवन एट द इंस्टेंस ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. काफी सारे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ देयर इज अ फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, सोचो अगर मैं खाली तुम्हारा ही डिविडेंड उड़ा दूं, तुमको लग रहा है दूसरे सब आएंगे? फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, then the courts might still take up the matter even if the company is not coming forward. Another thing, what if all the bullies are in control? Okay, so if I say if the wrongdoers are in control, so they will not come forward, they will keep harassing minority shareholders. अगर एक special resolution or matter which requires special resolution has been passed by ordinary resolution, then again court can interfere. Second is, if the company is doing any ultra vires act beyond the powers, अगर कोई act कर रहे company के, they can interfere. Then एक बहुत ही important point है जिसके ऊपर दूसरा पार्ट आएगा, that is called as operation, which brings me to the next topic, operation and mismanagement. Operation and mismanagement. समझते क्या होता है? So all these factors में courts will interfere. This is called as the exception to the rule. Your courts will interfere. Now, operation and mismanagement में क्या होता है? They have given in company law also this section you need to know by heart. Section is given under section. This operation and mismanagement is given under section. Mergers and amalgamation कौन से section पे end होता है? 234. 230 to 240. मतलब mergers, compromise, arrangement and amalgamation, it starts from 230 to 240. तो immediately उसके बाद आएगा, मतलब कौन सा section होगा वो? 241 to 246. समझ में आया ये? तो इसके अंदर क्या होता है? They are saying कि if the requisite number persons apply to NCLT, the requisite persons apply to NCLT to remove operation or mismanagement, कि यार प्लीज ये ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को निकाल दो, then NCLT will pass order to remove the operation or mismanagement. ये NCLT के पास में पावर है अगर requisite persons apply, requisite number of persons apply. अब वो requisite number of persons कितने हैं वो भी तुम देखोगे तो generally it is either 10% of the total number of persons, total members वहाँ पे लिखा रहेगा. So there is like 100 or 10% of the total numbers, whichever is this. तो एक बार वो देख सकते हो उसका requisite कितने लोग को minimum आना चाहिए. खाली एक बंदा ऐसा आ जाएगा तो नहीं चलेगा जिसके पास में बहुत ही कम है. कम से कम कितना होना चाहिए? एक लिमिट दिया है कि कम से कम, चलो ठीक है, नॉट 50-60%, बट कम से कम 10% जितने लोग भी आ गए तो NCLT विल टेक अप द मैटर. और तुम जाओ NCLT के अंदर, तुमको मेजॉरिटी केसेस ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के ही दिखेंगे. ठीक है. इसके अंदर क्लास एक्शन भी ले सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लास एक्शंस में क्या होता है कि शेयर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये लोग सब मिल के केस करते हैं कंपनी के ऊपर. ये लोग का क्लास एक्शन है.
they can file a case. Now question is, what do you mean by oppression? Just normal, they have not defined, but तुम्हारे हिसाब से इंग्लिश टर्म है. ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन मीन्स visible departure from fair dealing. Visible departure from fair dealing. And mismanagement का क्या मतलब होता है? मिसमैनेजमेंट मीन्स, ऑपरेशन मीन्स कहीं ना कहीं तुमको ऑपरेस कर रहे हैं, तो फेयर डीलिंग नहीं हो रहा है तुम्हारे पास. एंड मिसमैनेजमेंट मीन व्हाट? यू आर मैनेजिंग द अफेयर्स इन सच अ मैनर दैट इट इज डेट्रीमेंटल टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी. ठीक है? सो दिस इज गिवन इन योर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. सो you have your compromise and arrangement, we saw operation and mismanagement, and you need to know your case also, Foss versus and Bottle. इसमें अगर देखेंगे भी कि they have given this case of operation mismanagement, maybe from, because in the module it might not be given well, so you will have to just search. So what is operation? If you are running in a manner which is prejudicial to public interest, so you can just take this site. Powers of the tribunal दिया है section 242 के अंदर. वो क्या कर सकते हैं? They can regulate the affairs. You can mark this as important. Powers of the tribunal. They can regulate the affairs. They can terminate certain contracts. So जो भी तुम गलत करोगे वो उसको rectify कर सकते हैं. ये तुम्हारा इतना important part है इसके अंदर. Then if we see Foss versus and Bottle also, case law दिया है, majority rule, exceptions to the majority rule, ultra vires act किया तुमने, या कोई fraud on minority हो रही है, wrong doers in control, acts requiring special resolution are passed by ordinary resolution, class actions या operation mismanagement. Operation mismanagement we've seen from section 241 to 246 is there. यहाँ पे the application must be made by 100 persons or members having 1/10 of the voting power. The tribunal would entertain and then regulate the business. Clear है ना? Then if we see the next part, that is winding up. Now winding up का मतलब क्या होता है? What do you mean by winding up? It is a process of bringing an end to life of company. ये तुम voluntarily कर सकते हो. Voluntarily तुमने डिसाइड किया कि यार कंपनी अभी नहीं चलाना है, लॉस कर रही है, या फिर any reason you don't want to continue with the business or you don't see a future in the company, you can wind up your company. It is given under section 59. अब इसके प्रोविजंस भी क्या है ये भी तुम एक मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट. They can ask voluntary winding up. Now voluntary winding up में क्या लिखा है? It is in your insolvency bankruptcy code part 2 chapter 5 section 59. अब इसका शॉर्ट में देखते हैं पहले है क्या ये. फर्स्ट अगर कभी भी वाइंडिंग अप करना है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, तो सबसे पहले कौन डिसाइड करेगा वाइंड अप करना है? हु विल डिसाइड कि वाइंडिंग अप करना है? Board of directors. The board of directors will decide that they want to wind up the company. They will give a declaration. उनको एक declaration देना पड़ेगा कि वो लोग कोई भी fraud नहीं कर रहे हैं, कंपनी solvent है. तो वो लोग को certain declaration देना पड़ेगा. It is not to defraud anybody. फ्रॉड का नहीं करना है हम लोग को, एंड वी आर सॉल्वेंट, हम लोग के पास में पैसे हैं, फिर भी हमको बंद करना है कंपनी. फिर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, ईजीएम. ईजीएम के अंदर तुमको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा.
एक बार हो गया फिर तुमको पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, फिर काफ़ी सारे क्लेम्स आएंगे, लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं हु विल डू द वाइंडिंग अप प्रोसेस। क्लेम्स आएंगे कि कितने लोग का डिमांड है, कितने लोग को पैसे देने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स होगा, फिर एक फाइनल रिपोर्ट बनेगा एंड देन यू कैन डेसोल्यूशन ऑर्डर आ जाएगा एनसीएलटी से एंड देन यू विल इंटीमेट द आरओसी। क्लियर इतना? सो if we see you have to give a declaration that there is no, you're solvent and you're not meant to defraud anybody and you're not in any kind of default, then you can voluntarily wind up. You have to give the following supporting documents: past 2 years का फाइनेंशियल रिजल्ट्स देना पड़ेगा और वैल्यूएशन रिपोर्ट देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, रेजोल्यूशंस पास करना पड़ेगा, नॉर्मली स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, but if the tenure is specified or if the purpose of or the life of the company is given, पर्पस या इवेंट एक मेंशन किया था कि ये इवेंट होगा तो कंपनी बंद कर देंगे। जनरली यू थिंक कंपनीज के लाइफ मेंशनड होती है या इवेंट मेंशनड होता है? नो अगर ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है तो वो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। बट अगर कंपनी का टेन्योर मेंशन देके हम लोग 3 साल के लिए जेवी कर रहे हैं तब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हो। एक बार हो गया फिर कंपनी विल इन्फॉर्म ऑल दी अथॉरिटीज, आरओसी, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी बोर्ड, फिर एप्लीकेशन करेंगे एनसीएलटी को फॉर डेसोल्यूशन, एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा और वही कॉपी ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दैट इज एनसीएलटी विल गो टू द आरओसी। क्लियर इतना? And the liquidator should not be a related party or he should not be a employee. Clear है ना? Then when you see compulsory winding up, इसके अंदर तुमको which is the section that we have written for compulsory winding up? Section 271. कंपल्सरी वाइंडिंग अप क्या होता है? यू डोंट हैव एन ऑप्शन, एनसीएलटी ऑर्डर्स के धंधा बंद करो। नाउ व्हाई विल एनसीएलटी ऑर्डर? यू डोंट वांट टू शट डाउन बट एनसीएलटी has ordered you to shut down the company only on 5 grounds. सेक्शन 271 के अंदर 5 grounds दिए in which एनसीएलटी कैन ऑर्डर यू टू shut down the company. First is a special resolution has been passed by the company and they are only telling the NCLT कि आप हमको dissolve कर दो. So then NCLT will pass an order and then NCLT will supervise the entire working and entire process. Normally voluntary winding up में क्या होता है कि कोर्ट को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो अगर मुझे डाउट लग रहा है डायरेक्टर्स के ऊपर कि ये लोग वाइंडिंग अप के टाइम पे कुछ भी गड़बड़ कर देंगे तो खुद ही शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं और एनसीएलटी को बोल रहे हैं आप सुपरवाइज करो, देन एनसीएलटी विल पास द ऑर्डर। द नेक्स्ट, अगर कोई भी कंपनी इज अफेक्टिंग द इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, और इफ देयर इज अ फ्रॉड ऑन द कंपनी in the company, or if there is a default in filing the financial statements or the annual returns for 5 consecutive years, then again compulsory winding up can be done, and if it is any just and equitable cause. So they can ask you what are the grounds for compulsory winding up. So under these 5 grounds, the courts can order you to compulsorily shut down your company. Now we've seen 5 grounds. अब एक आता है लास्ट पार्ट विच इज द रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। नाउ रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स का भी सेक्शन देख लेते हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक आर द रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स? कभी आते होंगे वो लोग? at the time of लिक्विडेशन। अभी तुम देखोगे कि जब कंपनी को लिक्विडेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एसेट्स कितने हैं पहले वैल्यू तो करेंगे तब जाके बेचेंगे। घर ऐसा नहीं हो कि 4 करोड़ का तुमने 2 करोड़ में बेच दिया। तो काफ़ी बार कंपनी लॉ में वो लोग बोलते हैं कि आप वैल्यूएशन करवाओ। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड।
for the first time under section 247 of the Companies Act. It says that where a valuation is required to be made in respect of any of the property, stock, shares, debentures under the provision of the Act, it shall be valued by a person having such a qualification and experience and registered as a valuer. तो क्या हो गया इसकी वजह से, and accordingly the Ministry of Corporate Affairs has introduced the concept of companies registered valuer and valuation rules 2017. Now समझते क्या ये, वापस कंपनी सेक्रेटरीज को बहुत मजा आया. देखो नॉर्मली क्या होता था, जो वैल्यूएशन करते थे ना, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कौन करता होगा? विच प्रोफेशनल डू यू थिंक वाज बी प्राइमरीली इन्वॉल्व in doing valuation of stocks, property, etc.? Insolvency professions. नहीं, normally before this insolvency professionals, CA, CS, CWA. So it was chartered accountants. तो क्या हो गया, chartered accountants used to value the companies. तो उनका स्कोप काफ़ी ज़्यादा था, बट अभी स्कोप डिमिनिश हो गया, उनका कम हो गया उनका. क्यों? क्योंकि बोल रहे खाली सीए बन के फ़ायदा नहीं है. ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, कैसे ICSI है वैसे एक IBBI करके है. इट गवर्न्स इंसॉल्वेंसीज एंड बैंक्रप्सीज इन इंडिया. ठीक है, इट इज़ अ रेगुलेटर. सेबी कैसा है? सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है. दिस इज अ रेगुलेटर व्हेन इट कम्स टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी. समझ में आया? तो इसके अंदर IBBI बनाया वो लोग ने. IBBI के अंदर एक IPA करके बनाए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज. ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी एक सेक्शन 8 कंपनी है. और कौन कौन ये सेक्शन 8 कंपनी बना चुके हैं? ICAI, ICSI एंड ICWA. तो कितने IPAs बने हुए हैं? 3. ICAI ने एक सेक्शन 8 कंपनी बनाया है, ICSI ने इंसॉल्वेंट एक बनाया है, और ICWA ने. अब ये IPAs का काम क्या होगा? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज का काम क्या होगा? क्या करती है ICSI? They will conduct exams and grant memberships. तो ये लोग भी एग्जाम्स होल्ड कर सकते हैं टू बिकम अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स. तो आफ्टर यू बिकम अ CS या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आफ्टर बिकमिंग CA, they can give these exams IPAs का and become a something called as a insolvency professional. उसकी एक अलग एग्जाम होगी, या फिर रजिस्टर्ड वैल्यूअर की अलग एग्जाम होगी. तो खाली CA बन के तुम वैल्यूएशन कर पाओगे? नो. अब वो लोग ने एक एडिशनल एग्जाम डलवा दी है लोग को, एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर की एग्जाम देनी पड़ेगी. और वो लोग बोल रहे कि खाली रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही प्रॉपर्टी वैल्यू करवा सकता है अंडर द कंपनीज एक्ट, वेर एवर इट इज स्पेसिफाइड. सो व्हाट इज हैपनिंग रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स का? तो यू थिंक CA लोग का स्कोप कम हो गया कि ज़्यादा? नो डाउट डाइल्यूट हुआ है, बट व्हाट हैपेंस इज, इनको पता चल गया अगर ये लोग ने ये एक और एग्जाम दे दी, ICAI के बाद में वैल्यूअर की भी एग्जाम दे दी, फिर तो इनके पास में और भी ज़्यादा पैसा बना सकते हैं लोग. तो नाउ दे चार्ज लाइक 5 लाख रुपीज टू डू वैल्यूएशन रिपोर्ट्स. समझ में आ रहा है? तो स्कोप बढ़ गया है वापस, बिकॉज दे चार्ज अ लॉट नाउ, बिकॉज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स कम है. समझ में आया? तो यहाँ पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स करते क्या है? वैल्यू करते प्रॉपर्टी. दे विल हैव टू फॉलो द वैल्यूएशन नॉर्म्स, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे.
they will have to follow the international valuation methodologies. अलग अलग insolvency standards follow करने पड़ेंगे. Clear है ना? That is it. So you can just do a small research about this also for a 5-mark answer on registered valuers. The section under Companies Act is section 247. Clear it now? So this is it. Now let's see, we'll just go through the module and I'll give you marking. Now the thing is, you try getting 5 marks answers in place for these things. In the module, it might just be too elaborate. So maybe scanner, or you can make your own notes, but these topics you can cover. Now if you see in the module also, I won't cancel stuff because it's too much cancelling. I'll just stick the important parts. Okay, none of this is important. जो important है वही मैं mark करूँगा. And you can do the past year questions for these. None of this is important. तुम्हारा सीधा important कौन सा होगा? Section 232 के बाद वाला 233. What does it deal with? Fast track mergers. Two small companies or a holding and wholly owned subsidiary merge कर रहे हैं, तो CA 9, ये 10, 11, okay, 12 and 13 फॉर्म नंबर्स, ये मार्क कर सकते हो, 5 मार्क के लिए पूछ सकते हैं. नेक्स्ट, आफ्टर दैट देन यू हैव योर फॉरेन कंपनी के साथ में. तो 234 रेड विथ रूल 25 में वो लोग jurisdictions दे रहे, कहाँ कहाँ तुम जा सकते हो, कहाँ पे नहीं. Then dissenting shareholders का compulsory acquisition you don't have to remember, but you can try this much part if you want, just in case if they ask. यहाँ से लेके यहाँ तक. Okay, this much part. Then coming to the next part which they will be talking about is your case law. That is your majority and minority rights. So this also you can make a short answer or just make Google up. I've given you the structure of the answer. So this is important. Majority rule entirely you can do. The justification, the logic, rationale. Okay, company is a separate personality to preserve the majority rights, multiplicity of futile suits. What if the majority do not wish it? Exceptions to the common law. फिर ये लोग बात करेंगे about operation and mismanagement. Now operation and mismanagement from section 241 to 246. Now if you can read it up from here or just Google it up, you will make a 5-mark answer. It's more than sufficient. Then powers of the tribunal is important. It's given under section 242. 241 के अंदर and 242 is important. And even 245. 241 में वो लोग दिख रहे हैं कि कितने लोगों का कंसेंट चाहिए. कितने लोगों का कंसेंट चाहिए? Can you tell me? 10% minimum. See, this is important. Sorry, here 241 में important. How many people should come? The affairs of the company are being conducted in a manner which is prejudicial, oppressive against the company. If the requisite number apply. अब requisite number कितना है? Not less than 100 or 1/10 of the total number of shares, whichever is less. Okay, so they can apply. फिर कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुके हैं. दैट what are the powers of the tribunal? They can remove the operation mismanagement, they can regulate the affairs in future and so on. After this then they have class actions. ये सब मिलके भी केस कर सकते हैं. मार्क करो, important. 245. So 241, 242 and 245 is important. So in case if you find in too much theory, just Google up the section.
देन कम सेक्शन 271, 5 ग्राउंड्स जिसमें कंपलसरी कोर्ट वाइंड अप कर सकती है. तो या तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, it is being conducted in a fraudulent manner, there is a default for 5 consecutive years, or it is just an equitable. Then after that they have voluntary winding up. You can mark this also important, section 59. So all the sections they have given you. Then you will have this winding up rules बनाए लोग ने, companies winding up rules 2020. कैन यू टेल मी, वाइंडिंग अप के लिए कहीं ना कहीं तुमको एनसीएलटी के पास में जाना पड़ता है. ये लोग ने क्या किया है, एक समरी प्रोसीजर बनाया है, कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं दिया है. दैट यू डोंट हैव टू गो टू एनसीएलटी, यू कैन गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वाइंड अप. नाउ दिस इज नॉट फॉर ऑल कंपनीज, फॉर स्मॉल कंपनीज विच वील सी विच. सो कंपनीज वाइंडिंग अप रूल्स 2020. सो टू बेनिफिट स्मॉल कंपनीज दे हैव सेड दैट without going to NCLT to wind up, you can just file an application with central government and wind up the company. Now only these classes of company can do that. If the paid up capital is up to 1 crore, or the turnover is up to 50 crores, or if the loan amount is up to 50 lakhs, or the deposits is up to 25 lakhs, then you can opt for winding up. अब यहाँ पे भी देखेंगे, I'll just show you on Google also this. वाइंडिंग अप रूल्स 2020. तो इसमें भी क्या दिया है, खाली सिंपल सा लाइन पहले का देखोगे हो जाएगा. सो न्यू रूल्स हेल्प स्मॉल एंटिटीज वाइंड अप विदाउट मूविंग टू एनसीएलटी. द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज नोटिफाइड रूल्स फॉर वाइंडिंग अप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस without having to go to NCLT under the provisions of Companies Act. The rules are notified are given under section 361. They have given you the thresholds. वो thresholds में खाली they will make an application to central government and don't require consent of this. It will be signed off on 24th Jan and effective from 1st April. Clear? So not much content you will find, but short. Mark registered valuers is important. They can ask you. Registered valuers क्या है? Where a valuation is required, you will have to appoint a registered valuer. Valuer appointed shall be impartial, should be true, fair valuation. He should exercise his due diligence, do the valuation according to the standards, shall not undertake a valuation where he becomes interested or he is so interested. In case of contravention by the valuer, उसको punishable offense है. Liability of the valuer, where a valuer has been convicted, he shall be liable to refund his remuneration. It's really bad. And he will also have to pay the damages to the company. Regulator authority for registered valuer, I told you all, IBBI है, IBBI section 247. So they are the मेन रेगुलेटर. सेबी कैसे सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है, ये लोग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को रेगुलेट करता है. तो तुम एग्जाम भी रहेगी तो इनके ICSI भी RVO है. सो वी हैड सीन दिस पार्ट वेयर यू बिकम अ रजिस्टर्ड IPA जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, वैसे ही तुम्हारे RVOs है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशंस. So registered valuer organization, ICSI भी registered valuer है, ICAI भी है. ठीक है. So if we see this registered valuer organization, तो यहाँ पे देखोगे ICSI का भी है, ICAI RVO, ICSI RVO. क्या लगता है अगर मैं CS कंप्लीट कर लिया और मुझे वैल्यूअर बनना है तो मेरा रेगुलेटर कौन होगा? ICSI RVO. तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लोग बताएंगे कि इसका एग्जाम्स कब होगी, पेपर कब होगा इसका.
तो सबसे पहले वो लोग क्या एडवाइस दे रहे हैं, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फ्रेश, शेयर द नॉलेज. Okay, so whatever, let's see. So सेक्शन 8 कंपनी बनाई हुई है. इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी. ICSI RVO. It intends to enroll, educate, train and promote professions of registered valuer as per the Companies Act valuation rules. तो हम लोग भी इसमें एग्जाम होल्ड कर सकते हैं and we can give. If you want to see, let's see if they've given you the eligibility examinations. तो एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं एंड द फीस इज ओनली 1500, बट द पोर्शन इज वास्ट. इसका करिकुलम भी देखना है तो दे सकते हो तुम. एग्जामिनेशन फॉर्मेट, तो वैल्यूएशन एग्जामिनेशन, तो उसका वो एग्ज़ाम होगी. तो ये सारे टॉपिक्स होंगे, इसके इतने मार्क्स, वैल्यूएशन के अलग अलग टेक्निक्स and everything. So if you want, after doing your CS, you can register with ICSI RVO and give this exam. Okay, then the scope increases much more. Then next, if you see, after this RVO, who can offer valuation services? Anyone who has been, completed the educational course and passed the valuation exam conducted by IBBI. Registration, offices, fees, cancel, not important. Continuous default, no. Companies, and the chapter gets done. So that is it. Cross-border mergers, and then the power of central government to amalgamate in public interest. So that is it. From here you can take this important sections and then we are done.